Hello students, this is Shikha. In last video, I explained about the factors of production from the first chapter of economics from class 9th. This is the story of village Palampur. Now I am going to tell you about the farming in Palampur. Means Palampur, I have told many times in last video also, Palampur is a hypothetical village. Means it is an imaginary village. This is not a real village, this is an imaginary village. So today I am going to explain about the farming in Palampur. Means Palampur में farming किस type से होती थी. First thing in this very important thing, Palampur is well connected neighboring village. Palampur जो village है वो अपने neighboring village से well connected है and that village is Raiganj. Means Palampur is well connected neighboring village, यानी अपने वो neighboring village पड़ोस के village से well connected है और वो कौन सा है? This is Raiganj. And Palampur is well connected neighboring town, not village, town Shahpur. Means Palampur is well connected with neighboring village. This is Raiganj. And Palampur is well connected with which town? This is Shahpur. So conclusion क्या हुआ? Palampur, Raiganj and Shahpur all are well connected by the roads and transportation. Means यहाँ पर roads भी well connected है and transport भी, both are developed in these three areas. And next is availability of electricity. पालमपुर में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से ही थी. सो इन पालमपुर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन का सारा काम जो अच्छे से होता है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी होता है. इन पालमपुर में देयर इज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. मीन्स पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है. हेल्थ केयर फैसिलिटी में हॉस्पिटल है. इन पालमपुर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वो डेवलप्ड है. दिस इज हॉस्पिटल. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ इन पालमपुर. पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. सो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, सो इन इकोनॉमिक्स पूरे इन ऑल ओवर वर्ल्ड देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कंट्री. कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी टाइप्स की कंट्री होती है, सो 3 टाइप्स. फर्स्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री, सेकंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड फर्स्ट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, सेकंड इज डेवलपिंग कंट्री एंड थर्ड इज डेवलप्ड कंट्री. This I am telling you with one example. For example, this is underdeveloped country and this is developing country and this is डेवलप्ड कंट्रीज. मीन्स अगर हम ये जानने की कोशिश करें, वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्री इन अ वर्ल्ड, देयर आर 3 टाइप्स. वन इज अंडर डेवलप्ड, थर्ड नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड नेक्स्ट इज डेवलप्ड. मीन्स जिस कंट्री में अभी डेवलपिंग नहीं हुई है, एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी और टेरिटरी पर डिपेंड नहीं है, वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगी आपको. तो मीन्स दिस कंट्रीज अंडर डेवलप्ड मीन्स डेवलप नहीं हुई है. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ ऐसी ये सब फैसिलिटीज हैं थोड़ी बहुत, बट वो ऑल ओवर आर वो पूरी टेरिटरी सेक्टर पर डिपेंड नहीं है. सो दिस इज डेवलपिंग कंट्री. और जहाँ पर ये सभी एक्टिविटीज डेवलप हो गई हैं, प्रोजेक्ट है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल आर वेल कनेक्टेड. सो दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज. क्लियर? अगर किसी कंट्री में रोड्स वेल कनेक्टेड है, if any country has good transportation, so we can say this is developing or developed. If any country has
developed electricity है, a country has electricity in each part of country. If any country has primary school and high school both, means education system अच्छा है उस country में. तो अगर किसी country में health है तो well connected है. Farming, so first of all I told you about the first measurement कि हम क्राइटेरिया, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, कि अगर किसी कंट्री में ये सभी एक्टिविटीज हैं तो वो या तो डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड कंट्री है. तो अगर हम पालमपुर की बात करें, सो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद रोड्स, सो इट इज developing or developed. Palampur is well connected with transportation. Yes. Palampur में electricity है. Yes. Palampur has 2 primary school and high school. Yes. Healthcare facility. Yes. Hospital. So देखो ये all our activities are connected with each other. ये सभी activities एक दूसरे से कनेक्टेड है. मीन्स अगर रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन अगर उनका गुड है, अच्छा है, तो वहाँ पर और फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी. वहाँ पर रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो कनेक्टेड अच्छी होंगी, डेवलप्ड होंगी. अगर इफ एनी कंट्री हैज गुड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से आज इंडस्ट्रीज हैं जो वो इलेक्ट्रिसिटी बिना का काम नहीं चल रहा है किसी कंट्री का. सो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं. एक कंट्री जो अंडर डेवलप से वो डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सकती है. एजुकेशन सिस्टम, अगर किसी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इफ एनी कंट्री हैज गुड एजुकेशन सिस्टम, सो वी कैन से दैट. तो जो human resource, I told you in last topic of this chapter about human resource. जो human resource है वो कहाँ से वो good resource बनेंगे, वो education से, skilled. तो एजुकेशन से वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, एजुकेशन से वो लॉयर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, जिससे वो उस कंट्री को और ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं. तो एजुकेशन इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंटनेस ऑफ अ कंट्री. हॉस्पिटल यानी हेल्थ, इफ ए कंट्री हैज़ ए गुड हेल्थ, तो जो अगर किसी कंट्री में गुड हेल्थ है, सो दो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो गुड. वट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मीन्स जीवन जीने की क्षमता, एज. जो मैन पावर है उनकी एज कितनी है, अगर उनकी ज़्यादा ईयर्स जीते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है और वो हेल्दी हैं, तो और ज़्यादा बेटर है उस कंट्री के लिए कि वो उस कंट्री के प्रोडक्शन में, डेवलपिंग में भी हेल्प करते हैं. तो ऑल दीज आर फैसिलिटीज आर इन पालमपुर. तो हम पालमपुर कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड तो नहीं है. वो हम कैसे, वन मोर क्राइटेरिया इन इंडिया country for measurement of developed, underdeveloped or developing country, there are 3 sectors in economy. What are these 3 sectors? First is primary, second is secondary, and third is tertiary. Primary sector, if people in a country, people are involved in primary sector, means अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, प्लांटेशन में इन्वॉल्व है, तो मीन्स वो ज़्यादा एक्टिविटीज उस कंट्री में दे आर बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर. मीन्स इफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इन प्लांटेशन, इन फार्मिंग, सो दिस कंट्री इज प्राइमरी इकोनॉमी बेस्ड country. If the people of a country are involved in secondary sector, means industry, factory, तो इस यानी कि production with the help of raw material industry, if we are making another product, तो this is secondary sector. यानी industries में क्या होता है, raw material जो एग्रीकल्चर से मिलता है उससे हम दूसरा कोई और raw material बनाते हैं, तो वो किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी में. Tertiary sector, if people of a country are involved in tertiary sector, so this country is developed country. If a country is involved, the people of a country is involved in primary sector, so this is the second criteria. Clear?
तो दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड. If people of a country is involved in secondary sector, so this country is developing country. If people of this country are involved in tertiary sector, so this country is developed country. Tertiary sector में कौन कौन सी फील्ड आती है? For example, education, banking, transport. So all are activity involved in tertiary sector. This is the first method. Criteria of measurement. This is the second method, the criteria of measurement. Third, GDP means gross domestic product. अब हम ये पता लगाएंगे कि एक कंट्री का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस सेक्टर से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर से. इफ द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड मेजरमेंट. मीन्स अगर किसी कंट्री का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा आता है तो मीन्स वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है. इफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सेक्टर, सो दिस कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री. इफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन based on of a country based on developed country, so this country is a developed country. Clear? One more measurement of the criteria for measurement of underdeveloped, developing and developed country. This is income method. What is income method? Same, this is based on GDP. Means जो एक कंट्री की इनकम है वो किस सेक्टर से आ रही है. If more and more income is coming from of a country is from primary sector, so this country is underdeveloped. If income is coming from the secondary sector, so this is developing country. If income is coming from if income is coming from tertiary sector, सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिशरी, यानी टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. अगर इफ इनकम इज कमिंग फ्रॉम टेरिशरी सेक्टर, सो दिस कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द पालमपुर. इन पालमपुर ऑल फैसिलिटीज, पालमपुर हैज ऑल फैसिलिटीज, सो वी कैन से दैट इट इज डेवलपिंग कंट्री, बट वी कांट से इट इज डेवलप्ड. यानी कि हम इसे डेवलपिंग कंट्री तो डेवलपिंग विलेज तो कह सकते हैं, बट डेवलप्ड विलेज नहीं कह सकते. आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स इट इज इमेजिनरी विलेज, क्योंकि पालमपुर में प्राइमरी एक्टिविटीज भी होती है, देयर इज सेकेंडरी एक्टिविटीज आल्सो, बट ऑल पीपल आर इनकम्प्लीटली or not involved in tertiary, so we can say that it is not developed village, it is developing village. Next topic, this is farming is the main activity of पालमपुर. पालमपुर विलेज की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. फार्मिंग में जो फार्मिंग है वहाँ पर जो पालमपुर है वहाँ पर जो लैंड है वो लिमिटेड है. लैंड इज लिमिटेड इन पालमपुर, लेकिन फिर भी पालमपुर में प्रोडक्शन हाई है. वो कैसे? वो इट इज पॉसिबल विद द ग्रीन रेवोल्यूशन. पालमपुर जो है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया. इट हैज स्टार्टेड इन 1960. आई टोल्ड यू इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. सो ग्रीन रेवोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन इन पालमपुर इज वेरी हाई. So but I told you recently land is limited in पालमपुर. लैंड लिमिटेड है मीन्स उसको हम इलास्टिक की तरह खींच के बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है. वो कैसे हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन से. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न मेथड से फार्मिंग की जाती है, HYV हाई यील्डिंग सीड यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ किए जाते हैं. सो ये सभी मेथड को यूज़ करके जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है. नेक्स्ट, पालमपुर में जो वेस्ट लैंड है उसको भी कल्टीवेबल लैंड बनाया गया. सो इन दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन अबाउट द पालमपुर विलेज. इट इज हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी विलेज. It is well connected with neighboring village. This is Raiganj. It is well connected with neighboring town. This is Shahpur. All three are
वेल कनेक्टेड, यानी कि तीनों दिन के तीनों वेल कनेक्टेड हैं विद रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम ये पूछें कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो वो इसलिए हम वी कैन नो थ्रू रोड्स। अगर उस कंट्री में रोड्स वेल कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन गुड है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन अच्छी उस कंट्री में, इफ दिस कंट्री हैज गुड हेल्थ फैसिलिटीज, सो वी कैन से दिस कंट्री इज डेवलपिंग और डेवलप्ड भी। वो डेवलपिंग भी हो सकती है या फिर डेवलप्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया विद द इकोनॉमिक सेक्टर। इन इंडियन इकोनॉमी देयर इज 3 इकोनॉमिक सेक्टर। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर? जहां पर लोग इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर, फार्मिंग। सो दिस इज प्राइमरी सेक्टर। अगर किसी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो दिस इज अंडर डेवलप्ड कंट्री। If the people of a country are involved in secondary sector, so we can say this is developing country. If people are involved in tertiary sector, means education field, banking field, transport field, so we can say the service. We can say service sector is also tertiary sector. So this sector is a developed country. And the next criteria for the measurement, GDP, gross domestic production, means country का प्रोडक्शन कहाँ से, कौन से सेक्टर से आ रहा है? तो अगर वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है तो दिस इज अंडर डेवलप्ड कंट्री। अगर कंट्री का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा टोटल सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, यहाँ से आ रहा है, सो दिस इज डेवलपिंग कंट्री। अगर प्रोडक्शन टेरिटरी सेक्टर से आ रहा है तो दिस इज डेवलप्ड। इनकम मेथड इज बेस्ड ऑन जीडीपी, कि इनकम कौन से सेक्टर से आ रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, किस सेक्टर से आ रहा है? तो इस क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं कि दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग और डेवलप्ड। सो बट इन पालमपुर ऑल दिस फैसिलिटीज, पालमपुर हैज ऑल दिस फैसिलिटीज, सो वी कैन से दैट पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज। बट इट इज अ डेवलपिंग विलेज, बट इट इज नॉट डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे लोग पूरी तरह से टेरिटरी में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द फार्मिंग फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर विलेज में मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, बट इन पालमपुर लैंड इज लिमिटेड, लेकिन फिर भी वहां पे प्रोडक्शन हाई है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इट हैज स्टार्टेड इन 1960। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल, आर्टिफिशियल रेनिंग और फर्टिलाइजर्स, पेस्ट, तो इनकी सबकी हेल्प से जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट पालमपुर में वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेबल लैंड बनाया गया। सो आई एक्सप्लेन टुडे फार्मिंग इन पालमपुर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द